Namaste, Jai Hind. Join us on NCR Insights, the catalyst for meaningful dialogue, episode 3 of Real to Reality podcast series, where academic expertise meets industrial innovation. I am your host Manya, and today NCR Insights explores the synergy between theoretical framework and real world solutions. We are honored to welcome Mr. Mayankdeep Kharesa, who is currently pursuing his PhD at the prestigious National Institute of Technology, Delhi, as he shares his expertise and insights on the latest advancements in the Internet of Things IoT branch. From research labs to industrial floats, we explore the challenges and opportunities in translating academic expertise into real world impact. In this episode, we will delve into the intersection of IoT, innovation, and high end work culture. How can academia and industry collaborate to drive breakthroughs? Mr. Mayankdeep Khare sir, we welcome you to the show. Let's start with your journey from starting your career in engineering as well as what motivates you as a person to be in IoT research and its applications. Okay, thank you, Manya, and thank you very much for inviting me on this show. So, I started my engineering from a private AKTU institute, that is SRGI Jhansi. After that, I joined one company, that was Sysnet Global Technologies Private Limited, and I worked there for almost 1 year as network engineer, and then I decided to move on to academics. So I joined Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. So it is a government institute. So I joined Master of Technologies over there, and I completed my masters in 2013 to 2015, and then I joined this particular college and come into academics. So, talking about the research experiences and other things, so I am more into Internet of Things, and I am doing my research, my PhD also into this particular topic. So, yeah, there are many more things to share with you. So, we will speak about it. Yeah. Sir, we would like to know how important is specialization in the IoT field. Okay, so if we talk about IoT, so in coming future we will be witnessing over 19 billion active IoT devices nearby us. So it is very important for us क्योंकि आने वाले टाइम में जो आप देखेंगे आपके जितने भी डिवाइसेस आपके पास हैं फॉर एग्जांपल दिस इज स्मार्ट वॉच दिस इज वन ऑफ द आईओटी डिवाइस आपके पास स्मार्टफोन है दिस इज अगेन वन ऑफ द आईओटी डिवाइस सो ये सारे डिवाइसेस जब आपके पास होंगे तो इनको बनाने के लिए आपको मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी जब मैन पावर की रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी सो यू हैव टू गो विद द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स ऑफ दीज डिवाइसेस जब हम इन डिवाइसेस का आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे तब हम इन फील्ड्स में स्पेशलाइज हो पाएंगे So, how is AI changing the IoT landscape? अच्छा अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर तो जब भी हम एआई की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हमने जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस लिए उन एक्सपीरियंस को हम कैसे आने वाले फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं सो एआई इज़ वन ऑफ द थिंग जो वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है जितने भी IoT डिवाइसेस हम आज की डेट में देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अवर मोबाइल फोन अवर कैमरा एक कैमरा इज ऑल्सो प्रिडिक्टिंग योर एज सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एआई तो एआई जो है वो बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करने वाली है आने वाले टाइम में इनटू फील्ड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स So, what is the biggest misconception people have about IoT? okay so when we talk about internet of things people generally think that without internet of things doesn't work बट ऐसा कुछ नहीं है अगर हम बात कर रहे हैं आईओटी की तो ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए इट कैन बी सिमिलर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो जैसे अगर हम बात करते हैं जिगबी नेटवर्क्स की या वाईफाई नेटवर्क्स की या फिर आप लो पावर नेटवर्क्स भी आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं तो इन केसेस में आपका इंटरनेट जो है वो फुल फ्लेजेड वहाँ नहीं रहता है स्टिल यू आर सेइंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एज आईओटी सो दिस इज समथिंग जो इंटरनेट जिसके लिए ज़रूरी नहीं है फिर भी वो आईओटी है तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि बिना इंटरनेट के इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो नहीं चल सकता है बट ऐसा नहीं है बिना इंटरनेट के भी हम आईओटी डिवाइसेस को बना सकते हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं
Sir, can you briefly describe your journey in IoT? IoT की अगर मैं बात करूँ, सो आई स्टार्टेड डूइंग इनटू IoT सिंस 2017। 2017 में हमारा एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि PTC इज़ वन ऑफ द कंपनी जो इन सारे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराती है। तो उसमें PTC थिंगवर्क्स में उन्होंने हमें एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया और एक FDP कंडक्ट कराई। वो FDP मैंने ज्वाइन की एंड आई थॉट कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपना करियर जो है आगे लेके जा सकता हूँ। प्लस ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग आई सॉ वन वीडियो ऑफ मिस्टर प्रणव मिस्त्री। अगर आपने सुना हो सिक्स सेंस डिवाइस के बारे में, तो दिस इज़ वन ऑफ द डिवाइस जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे। और वो डिवाइस मुझे बहुत इंस्पायर किया। उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसी इनोवेशंस को बनाया जा सकता है जो आज तक हम सिर्फ सोचते हैं, जो हमारे इमेजिनेशंस में है, उसको हम ग्राउंड पे भी लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। So I started my journey of Internet of Things from there. After that, in 2019, मैंने जो है PhD में एडमिशन लिया इन NIT दिल्ली। तो वहाँ पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अपना जो एरिया ऑफ रिसर्च है उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आगे लेके जा पाऊँ। तो उसको मैंने कंटिन्यू किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स ऑल्सो। तो जो AQI आप नॉर्मली देखते हैं, जो आजकल जब अब सर्दियाँ आती हैं तो आप सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा AQI लेवल्स बढ़ गए हैं। वो जो लेवल्स बढ़ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइस बनाई जाती है, आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। उसको कैसे हम लो कॉस्ट बना सकते हैं, कैसे वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है इफ़िशिएंट रिजल्ट्स आपको दे सकता है, वो सारे प्रोसेस को मैं अभी अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहा हूँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। सर, अभी जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, हम्म, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स डाउन आते हैं उस लाइफ में, बिल्कुल। उस जर्नी में। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। बिल्कुल। तो सर, वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। ओके, सो सबसे पहली चीज़, तो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो आई वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो अवॉइड करता था कि मैं एकेडमिक्स में आऊँ। बट स्टिल टुडे आई एम इन दिस प्रोफेशन एंड आई एम वेरी मच लाइकिंग दिस प्रोफेशन। और ये जो चेंज आया, ये चेंज भी पार्ट था उस पर्टिकुलर जर्नी का जो हमारे इंजीनियरिंग के बाद स्टार्ट हुई। आफ्टर इंजीनियरिंग व्हेन आई ज्वाइंड सिस्नेट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, देयर आई वाज वर्किंग एज नेटवर्क इंजीनियर एंड वहाँ काम करते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है जो यहाँ पर अवेलेबल है एकेडमिक्स में, वो कल्चर मिसिंग है। और खुद का काम करना, खुद की रिसर्च करना, वो एक ऐसा पार्ट था जो कहीं ना कहीं मैं बार बार मिस कर रहा था। तो उसको दोबारा से अडॉप्ट करने के लिए, दोबारा से उस चीज़ को पाने के लिए मैंने मास्टर्स जो है वो ज्वाइन करने का सोचा। और मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया। मास्टर्स में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने 5 रिसर्च पेपर्स उस टाइम पब्लिश किए। एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, दैट इज़ नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम जब मैं वहाँ से वापस पढ़ाई में गया, तो दैट वाज द फेज़, क्योंकि आप एक बार जब जॉब कर लेते हो, उस तरीके के कल्चर में आ जाते हो, फिर दोबारा से पढ़ाई करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब आपने एक बारी जॉब स्टार्ट कर दी, अर्निंग्स स्टार्ट हो गए, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो दोबारा से वापस जाना और फिर डिटरमाइन होना कि नहीं, मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है, दोबारा से वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है, फिर वापस मैं जॉब पे आऊँगा। तो इस तरीके के फेजेस लाइफ में आते रहते हैं और इट इज़ वेरी नॉर्मल, सबकी लाइफ में होता है, चलता रहता सर, और आपने जैसे बताया आपने है। 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। हम्म, सर, हमें भी हर सेमेस्टर रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। हम्म। तो सर, कोई टिप्स आप अगर बताना चाहें उसके लिए। ओके, अगर हम रिसर्च पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो रिसर्च अपने आप में एक बहुत यूनिक सी फील्ड है। रिसर्च पेपर के लिए सबसे बड़ी जो प्रोसेस है वो है लिटरेचर। मीन्स आपको पहले रिसर्च पेपर पढ़ना आना चाहिए। जैसे जैसे आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है।
सो वंस यू कंप्लीट द सर्वे, फॉर एग्जांपल आप अगर एक रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, तो आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसमें एटलीस्ट 20, 30, 40 पेपर्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद उनका एक समरी बनाएंगे, उनका एक समरी टेबल आप क्रिएट करेंगे। देन यू विल गो एंड फाइंड कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर दैट यू विल डिवाइस वन मेथोडोलॉजी जो उस पर काम कर सकती है, एंड देन यू विल प्रिपेयर द रिजल्ट। तो वो जो है कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर बनाता है एक रिसर्च पेपर का। तो ये लेंदी प्रोसेस है। अगर आप प्रॉपर एक रिसर्च पेपर बनाना चाहते हो तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मंथ। कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मंथ, बट एक अच्छा पेपर आप लिख पाएंगे। Sir, as one of the youngest head of departments of IoT branch, you bring a unique perspective to our institution. Mhm. We would love to hear you about your experiences. Okay. Yes. So you are right. I am the youngest head of the department in this institute. सो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं काम करने पे जाता हूँ तो मेरे सामने जो लोग बैठे होते हैं वो मुझसे ज़्यादा एज के होते हैं। और काम करना इज़ वन ऑफ द पर्सपेक्टिव, मीन्स आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन जब आपको दूसरे पर्सन से काम कराना होता है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है। अभी तक लकीली जितने भी लोगों से मैं टच में रहा, जो भी मेरी टीम थी, बहुत सपोर्टिव टीम मिली है मुझे, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। बाकी बात करें जो पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को लेके है, क्योंकि मैं मेरा जो एज डिफरेंस है बच्चों से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो जनरेशन अभी आ रही है, दिस इज़ जेन जी जनरेशन। मीन्स इनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे टाइम पे अगर टीचर सामने रहता था तो एक अपने आप एक वो आ जाता था कि नहीं भाई टीचर है तो अभी अवॉइड हो जाना है, हमें इधर उधर चले जाना है, सामने नहीं आना है। बट दिस जनरेशन इज़ वेरी डिफरेंट। तो उनके कंसेप्ट को समझ के, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को समझ के उनके कंपेटेबल होना एक चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली फॉर द पर्सन्स जो कि एज में थोड़ा ज़्यादा हैं और जिन्होंने उस तरीके के कल्चर्स को नहीं देखा है पहले। तो वो कोप अप करना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए भी और बाकी फैकल्टी मेम्बर्स के लिए भी। बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके लेवल पे जाके समझा जाए, और उसके बाद फिर उनको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाए। Sir, do you think that the current curriculum is हम्म। according to the industry needs? अच्छा, अगर मैं एनआईटी की बात करूं तो वी आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमारे पास है वो ये है कि हम अपना करिकुलम जो है वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन्स हम कुछ परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर व्हाट वी डिड बिफोर गोइंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द कोर्सेज जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमने एक इंडस्ट्री बोर्ड जो है वो क्रिएट किया। इंडस्ट्री बोर्ड में हमने कुछ ऐसे मेंबर्स रखे जो इंडस्ट्री में 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। उनको हमने अपना करिकुलम जो है वो शेयर किया, जो हमारी एवोल्यूशन स्कीम है वो उनके साथ शेयर की गई। उन्होंने अपने इनपुट्स दिए कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें आपको अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी इंडस्ट्री में हमारे पास ये सब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो उस अकॉर्डिंग हमने सिलेबसेस को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अपना अप्रूवल का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया। एंड अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, आप लोग भी शायद देख रहे होंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे सिलेबसेस जो है वो चेंज हो रहे हैं, बिकॉज एवरी ईयर वी आर गोइंग इनटू द प्रोसेस। हर साल हम कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ द सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री जो है वो अपने पेस पे चलती है, और इंडस्ट्री जब अपने पेस पे चल रही है तो कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे तो आपको बच्चों में भी वो चीज़ जो है इनकलकेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग उस कंसेप्ट को सोचते हुए हर बार जितने भी हमारे रिपीटिशंस होते हैं, जितने भी हमारे चांसेस होते हैं अप्रूवल के जाने के लिए, हर बार हम बीयूएस में इस चीज़ को रेज करते हैं और अप्रूवल लेके आते हैं। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, अगर हम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की बात करें, तो हर एक जगह आपको वो स्पेशलाइज्ड
कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग। सर अगर हम AKTU के और कॉलेजेस में देखते हैं तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में वहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हम्म। लेकिन हमारे कॉलेज में पाइथन पढ़ाते हैं। हम्म। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब क्या पाइथन सूटेबल है या फिर बेसिक स्टार्टिंग के लिए सी पढ़ानी चाहिए? अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो देयर आर टू थिंग्स। दो चीज़ें हैं, हम पाइथन भी पढ़ा रहे हैं और सी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो है वो दोनों चीज़ें जो है कंपलसरी किया है। इस बार से अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हमने दोनों चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। बट द थिंग इज़, पाइथन की जब हम बात करते हैं तो हम लाइब्रेरीज और एपीआईज की बात करने लगते हैं। और पाइथन जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी लैंग्वेज है, वो बच्चों को बड़ा पसंद आती है क्योंकि आसान है, उस पर काम करना आसान है, उसमें चीज़ों को परफॉर्म करना आसान है। तो उस लेवल से स्टूडेंट्स जो है वो एट अ फर्स्ट लेवल वो उसको बहुत लाइक करते हैं। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए पहला जो लैंग्वेज हम सिखाते हैं वो पाइथन होता है। देन वी डेल्व इनटू द कंसेप्ट ऑफ सी। उसके बाद हम सी में जाते हैं और सी के जितने भी अपने कोर कंसेप्ट हैं वो हम पढ़ाते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ऐसे ब्रांचेस की जो एम्बेडेड सिस्टम्स में डील करते हैं, फॉर एग्जांपल ईसी या मैकेनिकल या फिर आईओटी की मैं बात करूं, ये ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पर सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सी पढ़ाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो आपको सी से मिलेंगे। और एडवांस की जब हम बात करते हैं तो एडवांसमेंट आपको कहीं ना कहीं पाइथन जो है प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम दोनों अभी फिलहाल कवर कर रहे So, what are the key skills and knowledge areas you focus on in your teaching? हैं। ओके, टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई बेसिकली फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ जो है, तो टेक्नोलॉजीज़ विल चेंज। टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो वो आने वाले टाइम में एक सर्टेन पेज से चेंज होती रहेंगी, बट जो स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैं वो हमेशा सेम रहती है। तो मेरा पहला जो एम होता है वो बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनकलकेट करना होता है। एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा सीख जाता है, उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को बच्चे में इनकलकेट करते सर ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं मतलब हैं। जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई? ओके, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं तो एस आई एच इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में स्टार्ट किया। और 2017 से आज 2024 तक दे हैव वेरियस वर्जन्स ऑफ एस आई एच। सो इन एस आई एच व्हाट दे डू, वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो फ्लोट करते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। वो अपने कुछ सर्टेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वो डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं उसको ओवर द पब्लिक डोमेन वो शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद स्टूडेंट्स जो है उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। उनको देखने के बाद अब उनका खुद का सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, वो डिज़ाइन करने के बाद फिर बच्चा जो है कॉम्पीट करता है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इस तरीके से डेवलप करूँगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ दी वे जिससे हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करते हैं। और इस तरीके के मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ हम बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हैंड होल्ड करें, उसको बताएं कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम अपने एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर प्रोजेक्ट है आपके पास। प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द एरिया जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसको सॉल्व करना है आपको। तो वहाँ से बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख जाता है। सर अगर एक सिंपल लैंग्वेज में किसी को बताना है कि आईओटी है क्या, ओके। तो सर आप प्लीज एक बार एक सिंपल लैंग्वेज में बताइए ताकि कोई अगर कोई एक कोई फ्रेशर है, कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो वो मतलब आईओटी को कैसे समझेगा? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। जो आपके पास अवेलेबल है पेन, ये पेन जो है अभी क्या काम है इसका, लिखते हैं इससे। ये पेन से हम लिख सकते हैं। ओके, सो अभी अगर ये पेन आपको ये बताने लगे कि मेरा जो इंक है वो ख़त्म हो रहा है, नाउ दिस इज समथिंग जो एलाइव हो गया है, मतलब अपने आप से काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो दिस इज समथिंग आई मीन्स
आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अलाइव बनाना, उसको हम आईओटी बोलते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और एनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी फिजिकल थिंग को आप एक ऐसे रिएक्ट कराओ कि वो अलाइव है और आपको इनपुट दे सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे बच्चे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यस सर। सर और अभी कुछ टाइम में हमारे कॉलेज में एमबीए आएगा हम्म। वेरियस ब्रांचेस में विजिट के लिए। हम्म। तो सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एमबीए इन एजुकेशनल फील्ड? ओके, सो एनबीए इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। एक स्टैंडर्ड बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी हायर स्टडीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी कंट्री की बात करें आप या आउट ऑफ द कंट्री बात करें, वो जब आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट करके अपना इंजीनियरिंग करके वहाँ जाओगे, तो दे विल सी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेदर इट इज़ एनबी accredited और नॉट। बिकॉज उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मैच करके हमारे पास आ रहे हो या नहीं। तो एनबीए जो है बहुत क्रूशल फैक्टर है एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर आप एनबीए कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे एमएनसीज और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले हो, वो आपको प्रेफरेंस देते हैं। रिसेंटली आई हर्ड अबाउट टीसीएस ऑल्सो। टीसीएस ने बोला था कि वी आर गोइंग फॉर द इंस्टीट्यूट्स जो कि एनबीए क्रेडिटेड हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट जो एनबीए के इम्पोर्टेंस को आपको बड़े आसानी से समझा सकता है। सर हम देखते हैं कि कई टेक्नोलॉजीज रेगुलरली कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो हम्म। आईओटी के फील्ड में भी कई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे स्टूडेंट्स को प्राइमरीली फोकस करना चाहिए? ओके, अगर हम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो एज कंप्यूटिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाला है। अब एज कंप्यूटिंग क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में बताया। अब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास देयर आर मल्टीपल स्टेशन, बहुत सारे अलग अलग स्टेशन हैं जहाँ से हम एयर क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं। अब ये जो एयर क्वालिटी मेज़र कर रहे हैं इसको आप कहीं ना कहीं क्लाउड रिपोजिटरी में भेजेंगे। ये डेटा आपका क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड पे जाने के बाद देन यू विल डू द एनालिटिक्स, और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें होंगी कि आप उस डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो। बट इन द केस ऑफ एज कंप्यूटिंग व्हाट विल हैपन, आपके पास जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, दे विल डिलीवर देयर डेटा लोकली। उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होगा जो उस डेटा को लोकली प्रोसेस करेगा, और जो आपको आउटकम्स देने हैं उनको वो लोकली बता पाएगा। उससे एडवांटेज ये है कि जब हम लेटेंसीज की बात करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं, डिलेज की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मिनिमाइज हो जाएंगी। जो ऑटोनमस व्हीकल्स का जो कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से जाके सॉल्व होने वाला है। तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी रोड्स पर, एक्सीडेंट्स आपको दिखाई देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स। और उसमें एज कंप्यूटिंग और आईओटी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि आईओटी कहीं ना कहीं बहुत एडवांस लेवल पे जो है वो लोगों को हेल्प करने वाला है। सर आपने बताया कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरिंग डिवाइस पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो सर आप हमें उसकी वर्किंग के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो जब आप परी चौक से बोटेनिकल गार्डन की तरफ मूव करते हैं, सो देयर आर टू स्टेशंस जो आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं और एक ही वही दिखाई देता है आपको। तो वो जो स्टेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं आपके एयर में, उन पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के बाद आपको डिस्प्ले कराते हैं कि भाई अभी करंट में हमारा जो एक्यूआई है वो क्या है। स्पेशली इन विंटर्स अगर हम अभी की बात करें, तो आप आने वाले टाइम में आप देखोगे और न्यूज़ में भी आएगा कि कहीं ना कहीं एक्यूआई जो है वो लेवल्स बढ़ रहे हैं, और वो लेवल्स जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमन लाइफ को।
तो उस डिवाइस को जितना ज़्यादा जगह हम रख पाएँ, वो हमारे लिए उतना अच्छा अलार्मिंग सिस्टम जनरेट करके देगा। तो क्योंकि वो डिवाइस कॉस्टली है, उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उसको अफोर्ड करना कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना फिजिबल नहीं रहता है। उस प्रोसेस को मैंने जो है वो एज अ चैलेंज लिया और कन्वर्ट किया उसको एक लो कॉस्ट सेटअप में। उसमें मैंने कई सारे सेंसर्स जो है वो लगाए, एक लो कॉस्ट प्रोग्रामिंग बोर्ड्स लगाए और एक एल्गोरिदम जो है वो डिवाइस किया, जिसमें हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग बोर्ड्स के बीच में कम्युनिकेशन करा के कैसे लो कॉस्ट AQI मॉनिटरिंग सिस्टम को बना सकते हैं। तो अगेन दैट पर्टिकुलर सेटअप इज इन पब्लिकेशन प्रोसेस। तो बहुत ज़्यादा तो मैं उसको डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म मैंने डिवाइड किया। सर, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, हम्म, तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, हम्म, बट एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू पब्लिश दैट. There is a vast gap in between the one who are publishing and the one who are just means हम्म, keeping it to themselves. हम्म। तो सर आप मतलब इस गैप को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ओके, तो अगर हम रिसर्च की बात करें, जब हम पब्लिकेशंस पे आते हैं और रिसर्च की बात करते हैं, तो ये दो ऐसे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम काम जो है वो जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम हम कर लेते हैं, करने के बाद पब्लिश नहीं कराते हैं, उस चीज़ को पब्लिकली डोमेन में लेके नहीं आते हैं। तो अगर वो प्रोसेस छूट जाती है तो होता क्या है कि उस सिमिलर डोमेन में कोई और भी काम कर रहा होगा, वो या तो पेटेंट प्रोसेस करा लेते हैं या रिसर्च पेपर्स के टर्म्स में उसको पब्लिश करा देते हैं। इन वंस इट इज़ डन, उसके बाद फिर अगर आप दोबारा से उस प्रोसेस के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं फिर आप कॉपीड कंटेंट की बात करने लगोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो नॉर्मली रिसर्चर्स फेस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इन केस, जब भी हम रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को भी हम यही गाइड करते हैं कि जो नियर बाय ईयर्स हैं, कि जैसे अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 24, 23 एंड 22, इन 3 ईयर्स की रिसर्च को आप देखो, उस पर आप अपना प्रपोज्ड मेथड लेके आओ। देन ट्राई करो, जब आप प्रपोज्ड मेथड आपका बन चुका है, आप इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हो, तभी आप राइटिंग स्टार्ट करो, उस पेपर को लिखना स्टार्ट करो। लिखने में मैंने आपको जैसे बताया था कि लिटरेचर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको सबसे पहले लिटरेचर करना है, एंड देन यू विल गो विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन प्रपोज्ड मेथडोलॉजी। तो वो जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर लोगे। वंस यू आर डन विद दैट, फिर आप रिसर्च पेपर्स की बात करोगे, आप उसको कहाँ पब्लिश करो। पब्लिश करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो ये है कि देयर आर मल्टीपल जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। आपके नियर बाय एरियाज में कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं और जर्नल्स भी होते हैं। आप डोमेन स्पेसिफिक सर्च करिए। मान लीजिए मैं आईओटी की अगर बात करूं, तो आईओटी में जो भी काम मैं कर रहा हूं, उस काम को मैं अगर पब्लिश करना चाह रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि आईओटी में कौन सी कॉन्फ्रेंस है जो मेरे नियर बाय इंस्टीट्यूट्स में हो रही है ना, या कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड आईओटी के कंटेक्स्ट को पब्लिश कर रहे हैं। वो एक बार जब मुझे पता चल गया तो मैं अपना जो पेपर है वो वहाँ सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद रिव्यू प्रोसेस चलेगी एंड देन द फाइनल कंक्लूजन विल कम। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना ओके सर. सर, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरिंग डिवाइसेस हम बना रहे हैं, तो है। सर इंडियन गवर्नमेंट उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है? अगर हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात करें, तो क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो ह्यूमन हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट करता है, तो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स डिवाइस बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट हमें है। वंस इट इज़ डन, वी विल पिच इन टू गवर्नमेंट ऑल्सो कि हमें कुछ इस तरीके का सपोर्ट या इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिससे हम अपने खुद की पीसीबीज डिज़ाइन कर पाएँ और उन पीसीबीज को हम फिर मार्केट में भी लेके आ पाएँ। सो अगर आपने सुना हो तो वी आर गोइंग फॉर द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री ऑल्सो। दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो वो आईओटी कंटेक्स्ट में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जितने भी पीसीबीज और सेमीकंडक्टर्स की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आउटसोर्स हो रहे हैं।
उनको हम इन हाउस बनाना जो है जैसे प्रोड्यूस कर देंगे, देन वी विल बी वन ऑफ द की प्लेयर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ से हमें गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। सर आपने बताया था कि आपने जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था। हम्म। तो सर आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करते हैं और क्यों? ओके, अगर मैं आईओटी की बात करूँ तो आईओटी में यूजुअली हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो और जो प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस बेस्ड होती है। एल्गोरिदम जो है वो आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। एल्गोरिदम के लिए आपकी कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रहती है। तो जो सूडो कोड है वो तो नॉर्मली हम लोगों ने डिवाइस किया। पहले हम जो मैं और मेरे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने बैठ के वो पूरी मैकेनिज्म बनाई। देन वी वेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। वो इम्प्लीमेंटेशन हमने जो है वो आर्डिनो में किया। आर्डिनो आईडीई है, इट इज़ ओपन सोर्स, और उसको जो है हम आईओटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते सर जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। हैं। सर बट दे आर नॉट एबल टू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर टू लर्न दैट। हम्म, तो सर आप उन रिसोर्सेज के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि मतलब आपने उससे सीखी हम्म, कहाँ से ताकि वो भी उसे सीख सकें। ओके। तो अगर आप रिसोर्सेज की बात करेंगे, दो कंटेक्स्ट हैं। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमारे मॉडल्स हैं उनको सीखना चाहते हैं तो आपको पहले बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, है ना। so there are some reference books available. One book is Internet of Things by McGraw-Hill Publication, so you can refer that, that is very good book. उसको रेफर करने के बाद आपको जो कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कैसे डेवलपमेंट करना है। देन बात आती है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की। तो आईओटी जो है, देयर आर 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। 4 ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज गैदरिंग द डेटा, डेटा एक्विजिशन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड ब्लॉक इज द कम्युनिकेशन पार्ट, मीन्स जो डेटा आपने गैदर किया उसको आपको कम्युनिकेट करना है। थर्ड इज द प्रोसेसिंग पार्ट, एंड फोर्थ वन इज द यूजर इंटरफेस। तो ये 4 अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन 4 में अलग अलग काम होता है ना। फर्स्ट वन, जब हम एक्विजिशन ऑफ डेटा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंसर्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एयर क्वालिटी की बात कर रहा था, देयर आर मल्टीपल सेंसर्स जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करते हैं। लाइक CO2 हो गया, PM2.5 हो गया, इस तरीके के अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को हम मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद अब वो जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ उस डेटा को आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट कहाँ करेंगे हम, क्लाउड पे लेके जाएंगे। जब वो डेटा आपका क्लाउड पे पहुंचता है, क्लाउड पे पहुंचने के बाद अगला जो हमारा टास्क होता है कि हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे होगा, देयर आर मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल हैं। पावर BI इज देयर, वन ऑफ द टूल। वहाँ से प्रोसेस करने के बाद हमें आउटकम्स निकल के आ गए कि ये डेटा हमारे पास जो जनरेट होके आया उससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। उस इन्फ्रेंस को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। So finally the output will come at मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन एप्लीकेशन। डेवलपमेंट। तो ये 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, इन चारों को आपको सीखना पड़ेगा। ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उसको कनेक्ट करना So can you share any surprising application of IoT that people might not know? पड़ेगा। ओके, सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग, जिससे मैं इंस्पायर हुआ बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करने के लिए। दैट इज 6 इंच डिवाइस। प्रणव मिस्त्री, अगर आपने नाम सुना हो मिस्टर प्रणव मिस्त्री का, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिवाइस जो है बनाया, काफ़ी साल पहले की बात है, और ये अभी की बात नहीं है। तो दैट डिवाइस इज़ नोन एज 6 इंच डिवाइस। वो डिवाइस, आजकल बहुत सारी इस तरीके की एप्लीकेशंस जो है आप देखते हैं। उस टाइम हमारे कीपैड फ़ोन हुआ करते थे जो नॉर्मली आपके बटन्स से काम करते थे, टच फ़ोन उस टाइम नहीं हुआ करते थे। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया, एक इस तरीके का डिवाइस डिज़ाइन किया जो टच स्क्रीन के तरीके से काम कर रहा था और जेस्चर्स को जो है मेजर करना था। मीन्स यू कैन राइट ऑन एनी वॉल, किसी भी वॉल पे आप राइट कर सकते हो डिजिटली। मीन्स विदाउट हैविंग एनी कंप्यूटर सिस्टम विद यू, आप डिजिटली वहाँ पे जो है राइट कर रहे हो। सो दिस वो दैट वाज वन ऑफ द
प्रोजेक्ट या वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसने मुझे इंस्पायर किया कि ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए। उसके बारे में मैंने पढ़ा। देन आई केम टू नो कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले टाइम में डिस्टर्ब करने वाली है पूरे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्लीट डिवाइसेस को। तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में शायद लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस में वो टेक्नोलॉजी देखी, लेकिन जो ओरिजिन था उसका वो 6 सेंस डिवाइस था, जहाँ से वो चीज़ें जनरेट हुई और अभी भी वो लॉन्चिंग स्टेट में है। अभी भी आप अगर देखेंगे तो कम्प्लीटली वो लॉन्च नहीं हुआ है। जब वो लॉन्च होगा तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल। तो बहुत सारे इस तरीके के जेस्चर कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। So, you are managing various things at a time. सर, तो आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और इस कॉलेज में आने के बाद भी आपके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। तो सर, जैसे SIH युक्ति, सर आप एक टाइम पे कॉलेज का भी, स्टूडेंट्स का भी सब देखना, एग्ज़ाम्स और उनकी वर्कशॉप्स और ये इवेंट्स, सर आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? ओके, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एट अ टाइम आई हैंडल्ड मोर देन 5 to 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आपने बोला कि SIH जो है वो इज़ वन ऑफ द मेन इवेंट, नेशनल लेवल इवेंट जो कि NIT में हम लोग कराते हैं। और उस इवेंट को कराने के पीछे जो प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत लेंदी होती हैं। तो यू नीड टू वर्क 24/7 टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट यू नीड टू मैनेज, आपको जो है वो टाइम डिवीज़न आना चाहिए कि कैसे आपको किस पर्टिकुलर टास्क को टाइम देना है और किस टास्क को पहले प्रायोरिटाइज करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, जब से मैंने ये इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में आई वॉज टीचिंग ओनली सब्जेक्ट्स। मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाता था और प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल करता था। एंड देन आफ्टर 2 to 3 months आई received one of the opportunity to conduct one international conference। एंड उस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए आई डिज़ाइन वन ऑफ द वेबसाइट जो कि उस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने डेडिकेटेडली डिज़ाइन की थी। और वो जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया कि कैसे मैन पावर को ऑटोमेट किया जाए। देर आर मल्टीपल टास्क, जब हम कॉन्फ्रेंस कराते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। उन टास्क को कैसे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद उससे जो फ़ायदा हुआ हमें वो ये हुआ कि हमारा जहाँ पर टाइम 2 आवर्स लगना था, 3 आवर्स लगना था, वो काम हमारा 15 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। तो जो रिमेनिंग टाइम बचता है वो फिर हम कहीं ना कहीं और डेडिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज द थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आफ्टर दैट आई वेंट फॉर दैट पोस्ट ऑफ एसोसिएट डीन मूक्स एंड इनोवेशन लैब्स। तो हमारे पास टोटल 27 इनोवेशन लैब्स हैं इन अवर कैंपस। और सारी लैब्स को जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, उसको केटर करना और उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब एक्टिविटीज़ को हैंडल करना, वो भी वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माई PhD। उस टाइम मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कॉलेज से एंड आई डेडिकेटेड दैट टाइम टू माई कोर्स वर्क ऑफ PhD। देन आई रीजॉइन द कॉलेज। एंड उसके बाद फिर हमने जो प्रोसेस स्टार्ट की उसमें मैं डिप्टी हेड बना, जो करेंट ब्रांच है हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। I served as deputy head for 1 year along with that associate dean post और जो मल्टीपल अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं लाइक SIH कंडक्शन एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट फिर आई वेंट फॉर वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि NISP की हम बात करते हैं, जिसमें बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए हम प्रमोट करते हैं। तो वहाँ अगर बच्चा जो है वो स्टार्टअप पे काम करना चाहता है तो उसके लिए एक सर्टेन पॉलिसी जो है वो इंस्टीट्यूट ने बनाई है। वो पॉलिसी आप कॉलेज वेबसाइट पे जाके विजिट करके भी देख सकते हैं। तो वो जो पॉलिसी है उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी टीम का ही है। आई एम दी NISP कोऑर्डिनेटर फ्रॉम NIET। देन एक और पोर्टफोलियो मुझे मिला फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ इनोवेशन एम्बेसडर।
जो आईआईसी की हम बात कर रहे हैं, तो इनोवेशंस को कैसे इंस्टीट्यूट में जो है वो इनकलकेट किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, वो कल्चर कैसे डेवलप किया जाए, वो आईआईसी जो है वो मैनेज करता है। So IIC is basically conducting multiple events throughout the year. There are 4 quarters, अलग अलग 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे युक्ति हुआ। युक्ति इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिशन जहाँ पर आप बच्चों से उनके आइडियाज़ को पिच इन कराते हैं और उनकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करते हैं कि आपने कितना क्रिएटिव सोचा। देन दे विल पाइपलाइन इट विद डिफरेंट फंडिंग एजेंसी, बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज से उसको कनेक्ट करेंगे। देन फिर वो देखते हैं कि भाई कितना पोटेंशियल है आइडिया में, और फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वो एक पोर्टफोलियो था। उसके बाद फिर आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि करेंटली मैं अभी भी इसी प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। तो दीज ऑल एरियाज आर देयर जिस पर मैंने काम किया है, और टाइमली अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे चीज़ों को तो मैनेज कर सकते हैं। सर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप जज करने जाते हैं हम्म। तो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। तो हम्म। ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पसंद आ रहे हैं, या आपका क्या क्राइटेरिया होता है, आप जिस बेसिस पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, हम्म। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो भी आप किस बेसिस पर करते हैं? ओके। तो जब भी हम हैकेथन्स की बात करते हैं, तो हैकेथन्स में जो प्रोसेस मैंने डिवाइस किया है वो ये है कि जो टीम है, उस टीम को मैं कुछ एक सर्टेन टास्क दे के आता हूँ, और वो टास्क उस लेवल का होता है कि वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो। अगर टीम जो है वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है, देन आई नो कि अभी इस टीम के अंदर पोटेंशियल है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से पूछते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम लेवल पे टीम्स आते हैं, या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा निकल के आता है जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि उस लेवल पे फिर बच्चों को जज करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस लेवल पे काम किया हुआ है और बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। बट स्टिल मैनेजेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने पोटेंशियल चेक जो है वो पहले लगा दिया। हमने पहले उसको एक टास्क दिया, उसने कंप्लीट किया, अगर कर लिया कंप्लीट तो वेल एंड गुड, उसको हम फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, जहाँ पर आपको एट अ टाइम जो है वो अपने जो है डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बेटर है। उस केस में हम कोशिश करते हैं कि जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी को छोड़ के जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो किस तरीके से आंसर कर रहा है, कितना वर्क उसने कर रखा है। अगर वो हमें लगता है कि ये रिलेवेंट है, ये बच्चा ऐसा है जो जिसको मैं अगर अपने तरफ से कोई और टेक्नोलॉजी भी दूंगा तो उसको वो आगे बढ़ा पाएगा, तो उसको हम प्रेफर करते सर, और अगर हमें एक हेल्दी टीम चाहिए, हैं। एक प्रॉपर टीम चाहिए, तो हमें टीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? ओके, टीम सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है लीडर। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको रिक्वायरमेंट्स पता होते हैं। आपको ये पता होता है कि मेरा जो टास्क है, उस टास्क के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मुझे यूज़ होने वाली हैं, या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके हिसाब से फिर आपका टीम सिलेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करें, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपका अगर हम आईओटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्लाउड की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लाउड के बाद आपको डेटा एनालिटिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हो सकता है आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की भी ज़रूरत पड़े। तो वो चारों फील्ड के एक्सपर्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे इन योर टीम। एंड आफ्टर दैट वंस इट इज़ डन, वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है इंटीग्रेट कैसे होंगी, कैसे उसको टेस्ट करोगे आप, ये फैसिलिटीज़, ये मेंबर्स की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से हमेशा हमें टीम सिलेक्शन करना चाहिए। तो सर, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव हैं, उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, हम्म। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो हो जाते हैं, लेकिन हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में फंडिंग हम्म। फंडिंग इज़ अ बिग इशू। हम्म। इनिशियली अगर हमें स्टार्टअप के लिए अप्लाई भी करना है कहीं हम्म। पर, एग्जांपल कैसे युक्ति है, उसमें रजिस्टर भी करना है, हमें प्रोटोटाइप अगर चाहिए तो प्रोटोटाइप के लिए हमें फंडिंग चाहिए होती है। तो हमें फंडिंग कैसे मिल सकती है?
ओके, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास लेके आए थे. सो वी हैव वन क्लब इन आवर डिपार्टमेंट, दैट इज सिगनोड्स, जो आईओटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस को बनाते हैं. तो वो बच्चे मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके आए कि सर हमारे पास हार्डवेयर के लिए जो है वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो अब क्योंकि फंडिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, देन द प्रोसेस विल स्टार्ट, रिव्यूज़ होंगे, अप्रूवल्स होंगे, देन यू विल गेट द फंडिंग. वो एक लंबा प्रोसेस है. हो सकता है जब तक आप जिस चीज़ को एम कर रहे हो वो चीज़ उस लेवल की, मतलब आपका टाइम जो है वो निकल जाए. तो मेरा उनको जो सजेशन था वो ये था कि आप अप्लाई करो, फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो फंडिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आप एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाओ और उस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाओ. फॉर एग्जांपल आप अगर एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में ही आपने प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को इतना एफिशिएंट बना देना है कि आप उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ से आपको फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हैकाथन्स होते हैं, वो आप प्राइस मनी जो है बहुत अच्छा होता है. 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं, 10 लाख रुपीज़ तक का भी प्राइस होता है. तो आप वहाँ अप्लाई करो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखो और वहाँ से फंडिंग जो है कलेक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट पाथ है. अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज पे जाओगे और वो प्रोसेस को फॉलो करोगे, वो इट में टेक टाइम, वो टाइम ले सकता है. बट इवेंट्स जो है उसमें बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं और बहुत जल्दी जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो कोशिश हमें ये करना चाहिए इनिशियली, जो हमारा एक टारगेट है कि हाँ मुझे इतना 3,000 5,000 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, उतना आप इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट करने के बाद तो इवेंट्स जैसे भी आप टारगेट करें, टारगेट करने के बाद उन इवेंट्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें और उससे आपको रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी मिल जाएंगे. वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है आपके लिए. अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो इवेंट्स पे जाओ, इवेंट्स को परफॉर्म करो, परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स लो और यू आर गुड टू गो. Sir, certain devices might be available in the college laboratories also. Why can't they give this? They give that. एक्चुअली प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वी हैव लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विद अस. तो अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है कंपोनेंट्स की, देन वी कैन प्रोवाइड, बट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ओनली. अगर आपको आपके प्रोजेक्ट पे लाइफ लॉन्ग काम करना है, मीन्स उसको आगे लेके जाना है, तो वो कंपोनेंट बोरो करना उसका सॉल्यूशन नहीं है. वो कंपोनेंट्स आपके पास होना चाहिए. अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन डू हैंड्स ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आप उसको रात में भी उसको काम कर सकते हो, कभी भी आप काम कर सकते हो. लैब का डिपेंडेंसी लेके आना वो बहुत अच्छा जो है वो चीज़ नहीं है. लेकिन हाँ, लैब सपोर्ट आपको मिल सकता है. आप एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज़ के लिए अगर चाहते हो तो आपको लैब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मिल सकते हैं, टेस्टिंग करने के लिए मिल सकता है. बट आपके पास वो कंपोनेंट्स रेडीमेड होना चाहिए, तभी आप उस पर आगे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जो है वो बना पाओगे. So any final thoughts or recommendations for our audience? ओके, सो फाइनल थॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो आईओटी की ही मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो फील्ड्स को इंटीग्रेट कर रही है. आपका सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर है और हार्डवेयर भी यहाँ पर है. तो जब हम इन दोनों फील्ड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मर्जर निकल के आ रहा है जो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहा है. तो आप इन टेक्नोलॉजीज़ को देखिए, इस पर काम करना स्टार्ट करिए और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करिए, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करिए. जैसे मैं सुनता हूँ आजकल की एआई जो है, लोग समझते हैं कि एआई जो है लोगों की जॉब खा जाएगी, Yes, जॉब जो है किल कर रही है. इस तरीके की चीज़ें जो है वो मार्केट में सुनाई देती हैं, बट ऐसा नहीं है. एआई इज़ जस्ट अ टूल. एआई जो है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती है. तो चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, खुद को जो है बार बार असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, आपको उस डोमेन के अंदर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तभी आएंगे जब आप कॉम्प्लेक्स लेवल पे अपने आप को असेस करोगे. सो आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, कीप रिवायरिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को बार बार रिवायर करते रहिए.
उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप आगे भी बहुत जा पाएंगे। It was a wonderful session with you, sir. We are very much thankful to you for your presence and for your precious time that you gave us today. Sir, our whole entire NCR Insights team is very much thankful to you for your presence, and we would love to have much more sessions with you. Definitely. I am also very much grateful that NCR Insight team invited me for this particular session, and all the very best to you all for future aspects. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.